Good morning, class 6. I hope you had a fun holiday. Welcome back. I'm in this video. I will explain your work for today. Okay. Um, you have English, math, and activity today. For your English, first you read on Bolo app for 20 minutes. After that, you will write these sight words 3 times in your copy and then read and send a voice note on the group. Okay. You will again read this passage. आपको ये passage पढ़ना है, एक बार लिखना है अपनी कॉपी में, पढ़ना है, and then you will send us a voice note. Now let's move on to our math chapter. Okay, so today we are studying a new chapter which is called operations and fractions. हम operations and fractions पढ़ रहे हैं. Our objective today is students will be able to convert mixed numbers to improper fractions pictorially. ठीक है. कन्वर्ट का मतलब है बदलना. ओके हम किसको बदलना सीख रहे हैं? मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर्स to improper fractions. Okay, and how will we do this? We will do this pictorially. That means just through pictures. Okay. um, so let's first move on. Then do you remember what are fractions? Fractions क्या होते हैं? हमने last year भी पढ़ा है, 4th standard में भी पढ़ा था. Okay, so fraction represents a part of a whole. एक पूरे चीज का एक part होता है, उस part को हम fraction बोलते हैं. Okay, and हर एक part equal होना चाहिए. It should be equal number of parts. So in this picture we can see that, imagine this is a cake. अगर ये एक cake है, उसको हमने 5 parts में divide किया है, और यहाँ में से 2 parts मैंने सोचो अरकान को ले लिया है, तो उसको कितने parts मिले हैं? उसको मिले हैं 2/5. ओके, ना ऊपर में जो नंबर है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे में जो नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, वी कॉल द अपर नंबर न्यूमरेटर, द लोअर नंबर डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का मतलब क्या है? कितने पार्ट्स हमारे पास है या कितना शेडेड पार्ट है, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है कितने टोटल पार्ट्स. ओके, then this page you will do by yourself. ये पेज आपको खुद से करना है. You have to write ये जो shaded portion है वो कितना fraction है. So in this shaded portion there are total 5. So नीचे 5 आया और यहाँ पे 2 है. 2 are shaded, so you write 2 ऊपर as numerator. Okay, you do this rest of the sums in the same way. Then the next sum you will do, you will have to shade that part. So यहाँ पे 4/7 है, तो 7 parts में से 4 आपको color करने. ठीक है, in the same way you will do the rest of these. Okay, now what we are going to move on to is our actual work, which is about fractions. Okay, the different types of fractions. कितने अलग अलग type of fractions है? Let me explain to you on the board. Okay, so if you think about fractions, okay, fractions 3 टाइप के होते हैं. Okay, one is proper fraction. ठीक है, then another is improper fraction, and the third one is mixed number. ठीक है, so ऐसे करके 3 अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं. So let's see कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर होता है, so मैं न्यूमरेटर को शॉर्ट में लिखूंगी NU, मतलब ऊपर का नंबर जो होता है वो नीचे के नंबर से छोटा होता है. ओके, मैं नीचे के नंबर को, दैट मींस डिनोमिनेटर को, आई विल राइट DEN. ओके, सो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. सो से सपोज 2/3 और 1/5, इन सब में ऊपर वाला नंबर बड़ा छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है. सो न्यूमरेटर इज smaller than denominator. Okay, next in improper fraction what happens is the opposite. Numerator, okay, वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ओके, so now you have say suppose 5/4. ठीक है, or you have
10/2. ठीक है. So this is how what improper fraction is. It is numerator is greater than denominator. Next you have mixed number. Mixed number में क्या होता है, एक whole number होता है, मतलब एक पूरा number होता है. Say suppose 2. Okay, उस number के साथ में you have a proper fraction. उसके साथ you have a proper fraction. Say suppose 1/4. ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इस नंबर को हम मिक्स्ड नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों है, राइट. अ नंबर एंड अ फ्रैक्शन बोथ आर देयर, सो इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड नंबर. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस. ओके, ये चीजें हम कैसे रियल लाइफ में देख सकते हैं. लेट अस सी दोस. वन सेकेंड. या okay, so say suppose for proper fractions is very simple. Let's suppose कि आज अरकान का बर्थडे है. ठीक है, ये अरकान का बर्थडे केक है. उसको उसने 4 हिस्सों में, सॉरी ये हिस्से ठीक नहीं लगते, दे शुड बी इक्वल. ओके ओके, आप लोग मान लो कि ये इक्वल भाग है. ठीक है, उसने 4 हिस्से में बांटा और उसने एक और दो पार्ट्स उसने अमान को दे दिए. ठीक है, he gave 2 parts to अमान. तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे? We will write this as 2, ओके, जितना शेडेड है अपॉन 4. ठीक है. नाउ इमेजिन कि अरकान को 2 बर्थडे केक मिले. एक नहीं, अरकान गॉट 2 बर्थडे केक्स. 1 केक, another cake. ठीक है, he got 2 birthday cakes. So now what will happen is that उसने दोनों बर्थडे केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, और उसने क्या किया कि उसने इसमें से ये he gave away 1 2, जहां पे भी मैं कलर कर रही हूँ, 3 4 5, उसने 5 पीसेस अक्षरा को दे दी. ठीक है, he gave 5 pieces to अक्षरा. तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? how will we write this as fraction? okay, this is called an improper fraction. जब आपके पास एक चीज से ज्यादा होते, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज से कम होते, इम्प्रॉपर में एक चीज से ज्यादा होते, राइट. So now here what you will do is कितने सारे parts shaded है? 5. 5 is shaded, और हर एक को, say suppose ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसको कितने भाग में हमने डिवाइड किया है? 4. ओके, यू डोंट, आपको सारे टोटल नहीं गिनने कि टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं. ओके, दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू कैलकुलेट एक केक को उसने कितने पार्ट्स में किया है. ठीक है, सो इसने एक केक को 4 पार्ट्स में किया है. ओके, सो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो ऐसे कोई भी अगर आपका फ्रैक्शन है तो उसको आप ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखा सकते हो. ऊपर में जो नंबर होता है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ शेडेड एरियाज. जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, जितना भी शेडेड है, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, इट कैन बी एनीथिंग. एंड नीचे में हर एक चीज को आपने कितने भाग में टोटल किया है. ओके, now in this same way what you will do is you will learn कि इसी चीज को हम मिक्स्ड नंबर में कैसे लिख सकते हैं. इसी चीज को हम मिक्स्ड नंबर में कैसे लिखेंगे? अगर ये चारों पीसेस हमने अक्षरा को दे दिए तो उसको एक केक तो मिल गया, राइट. एक केक मिल गया, एंड उसको ये जो केक है उसका कितना पार्ट मिला है? उसमें से एक पार्ट मिला है. इसको हम कैसे लिखेंगे? 1, ये एक शेडेड है, 1/4. ओके, सो दिस इज अ मिक्स्ड नंबर. ऐसे करके आप एक मिक्स्ड नंबर लिख सकते हो. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो सिर्फ इम्प्रॉपर नंबर का होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा, एंड फॉर मिक्स्ड नंबर. ओके, लेट मी इरेज दिस.
ओके, सो लेट्स सी कि अब अमान अभी खुबान का बर्थडे है, खुबान के बर्थडे में 3 केक्स लाए उसके पेरेंट्स ने, ही गॉट 3 केक्स, ओके। सो तीनों केक को उसने चलो हाफ हाफ कर दिया, आधा आधा, ठीक है। और उसने उसमें से हाउ मेनी पार्ट्स डिड ही गिव? ही गिव लाइक ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट, ये इतने सारे पार्ट्स उसने अपने भाई लिसान को दे दिए, ओके। और बस इतना पार्ट अपने लिए भेज रखा। तो फ्रैक्शन में हम कैसे दिखाएंगे इतना ये सारे पार्ट्स? वी विल काउंट की कितने शेडेड है, कितने में ग्रीन है, 1 2 3 4 5, ओके। सो 5 आर शेडेड, 5 ऊपर रहेगा। एंड हमने एक चीज, एक केक को कितने में डिवाइड किया है? 1 2, राइट। सो नीचे 2 होगा, प्लीज रिमेम्बर दिस, नीचे 6 नहीं होगा, नीचे 2 होगा, क्योंकि एक केक को कितने में हमने डिवाइड किया है, दैट वी विल राइट ऑन इन द लोअर पार्ट, ओके। सो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी चीज को हम चाहते हैं कि वी विल राइट इन मिक्स्ड नंबर, ओके, if you want to write this in mixed number, तब हम कैसे लिखते हैं? let us see that. So if you want to write this in mixed number, you will write, ये एक पूरा केक है और ये और एक पूरा केक है। so कितने पूरे केक्स मिल गए हैं, that will be the whole number. कितने पूरे केक्स मिले हमें? 2 full cakes, like 2 complete cakes, so we will write 2. एंड देन इस केक का कितना पार्ट है हमारे पास? 1 पार्ट अपॉन ये पूरा, इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं? 2, ओके। इफ यू वांट टू राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन हियर, सो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर, okay. I hope you understand. There are a lot more examples out here. If you go through them, you will surely understand, okay. Let's go back to our document. Alright, so यहाँ पे examples दिए हैं कि what is a proper fraction, what is an improper fraction, and what is a mixed fraction, okay. Now improper fraction में I told you कि total number of parts should be shaded, okay, divided by number of parts one whole is divided into. ये एक चीज कितने में डिवाइड की है वो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। Now mixed number is whole number plus proper fraction. तो कितने पूरे चीजें हैं? 3 full things and then एक आधा फ्रैक्शन है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में साथ में लिखते हैं, ओके। नाउ हियर you have to convert the mixed number to improper fraction. तो यहाँ पे मिक्स्ड नंबर आपको दिया हुआ है, आपको बस प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है कि सो हियर से सपोज नीचे 4 है, बिकॉज हर एक चीज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एंड यू हैव टू फाइंड कि टोटल कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स शेडेड है, ओके। इन द सेम वे यू विल डू क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको कितने टोटल शेडेड है वो ऊपर लिखना है, ओके। एट द सेम टाइम प्लीज लुक कि मिक्स्ड नंबर में यही चीज कैसे दिखती है, ओके। Now, in this question, you have to write both the improper fraction and the mixed number. ये जो fraction का model है, उसको आपको दोनों improper fraction में लिखना है कि इसको हम improper fraction में कैसे लिखेंगे और इसको हम mixed number में कैसे लिखेंगे, alright? Try it out by the same way that I've explained. For today you have a math challenge which is on division, okay. I hope आप सबको division आता है. If you don't, please ask, okay, and complete these challenge sums. For your art activity, I've given you a drawing to do, and that is about it. Thank you so much. I hope you understood. If you have any confusion, please ask, okay.